So inshallah, let's start our class. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ameen ya rabbil alameen. Ameen ya rabbil alameen. Seems like we have Amreen and I'm going to revise some stuff with each other, inshallah. So inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala put lots of barakah in our efforts, inshallah, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept each and every word that we say and try to figure out, and may Allah subhanahu wa ta'ala make our understanding of Quran easy and easy, inshallah. So let's start, Amreen, inshallah. Amreen, have you heard from Annie, if she is able to join or not? I think she was. I just sent her a message. Okay, alhamdulillah. Okay. So let's continue where we were yesterday, inshallah. So our recording is on, so it should be able to save everything. Okay, inshallah. Okay, so we were covering the concept up till ayah number, like we were talking about this, we talked about this, wasama rafaha wa wada al mizan, और जिसमें I requested you guys कि आप इसमें शागल का concept देखिएगा. Of note, exactly. I was able to go through it, alhamdulillah, more in detail. So what the Ustad has mentioned in his book is, this is a particular structure which has ism, which comes before the fail, and then with that fail comes the attached pronoun. Yeah. And this attached pronoun refers back to the ism, which is before the fail. So yahan tak mera khayal hai ki everybody should be clear. Of note, we need to keep in mind there are certain af'al, there are certain fail which may not need any preposition. So in that case, you can just attach that fail to like, you know, that particular pronoun to the fail directly. No issue with that. Just like aapko isme nazar aa raha hai, rafa'aha mein. There are certain af'al which actually need some preposition. उस्ताद ने जो आपको एग्जांपल दी हुई है, पेज नंबर 26 पे एग्जांपल आई थी, उसमें आपने आदा अल काफिरीना वल काफिरीना, अमरीन कैन यू अप्रिशिएट इट, पेज नंबर 26 पे जो आपको उस्ताद ने हमें दी हुई थी एग्जांपल, वल अर्दा मददना, हाँ बिल्कुल, ये वाली अगला वाले पेज पे जाएं, पेज नंबर 27 में, लेट मी जस्ट ओपन दैट टू इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने वो नहीं खोला हुआ, मैंने कुछ और खोला हुआ है. तो पेज नंबर 27 में आपका जो एडवांस स्ट्रक्चर की बुक है उसमें है वज़ालिमीना. Amreen, can you look at this one example, this example which is highlighted? वज़ालिमीना आदा, वज़ालिमीना आदा, he prepared lahum, for them, for them. Yes. So this is the example where your fail needs some preposition to be attached to your maf'ul bihi. Okay. So the la is the preposition which is specially attached here. Exactly. Okay. ठीक है. So मैंने कल आपसे ये बात की थी कि उसके साथ directly attached होता है. So now you are able to see an example where you may not be able to see कि वो बिल्कुल ही directly attached है. जो example, other examples in the Quran, like there are multiple examples actually in the Quran, they may have bihi attached with it. So right now you are seeing lahu, but you may have the bihi. So in short, what we are trying to say is, if there is an ism before the fail, and then with that is fail, there is an attached pronoun meaning any pronoun which is referring back to that ism, then you are dealing with a structure which is called the ishtighal, right? और हमने बात की कि ishtighal में आपका जो पहला वाला ism होता है उसको मशगूल अनहु कहते हैं, जो fail होता है वो मशगूल होता है, वो यानी कि वो engaged है कोई काम करने में, ठीक है, वो engaged है कोई structure बनाने में. किसके साथ structure बनता है वो आपके पास होता है ism, and then the pronoun this is called the शागिल. ठीक. So ये वाला structure हमें समझ आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह. Then we went on, we covered ववादा अल मीज़ान, no issue with that. आपको simple fail था, उसके साथ आपका मफूल भी लगा हुआ था. अल्ला ततगौ में हमने कहा था अन है, और उसके साथ ला ततगौ फिल मीज़ान हमने कवर किया था. And then we were on, I think we were on, no, we also covered वअकीमुल वज़्न बिल क़िस्त, जिसमें command था अंतुम का अकीमु, or that has मफूल बिही as al वज़्न, and then बिल क़िस्त MBF. And then वला तुख़सिरू, ये ला कौन सा बनेगा अमरीन? ये forbidding है, नाहिया होगा ना? Good job. नहीं, good job.
सो ये आपका ला नाहिया था, उसके बाद तुक्सिरू था, अल मीज़ान नो इशू। हमने मीज़ान के मतलब की बात की थी कि वज़न एज़ अ रूट लेटर और ये आपका इसम आला बन जाता है आपकी आला फैमिली बनता है। का। और हमने ये भी बिल्कुल। बात की थी कल कि जब अगर आपको गेस करना पड़े कौन सी फैमिलीज़ में, हमने 3 फैमिलीज़ कवर की थी जो कि मुजर्रद की मोस्ट कॉमन फैमिलीज़ हैं। और अमरीन वो कौन-कौन सी थी तीनों फैमिलीज़? नसरा, दरबा, समिया। समिया, गुड जॉब, यस। सो नेक्स्ट हमने अब आप आयत नंबर 10 कवर करनी है व्हिच इज़ वल अर्दा वदाहा वदाहा लिल अनाम। वल अर्दा वदाहा लिल अनाम। हाँ जी इमरीन, इसको खोलें आप। अच्छा जी, इसको भी, इसमें भी वही है, वल अर्दा जो है वाव तो हो गया हर्फ अतफ, और अल अर्दा जो है वो इसम मंसूब है जो कि ऑन इट्स ओन यहाँ खड़ा हुआ है। और आगे हम फिर वही देखते हैं, वदा आ इज अ फेल जिसके साथ एक अटैच प्रोनाउन हा, जो वहाँ मफूल बिही के तौर पे कहने को इस वक्त हम कहें तो वो अटैच है, विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अल अर्दा, क्योंकि अल अर्द इज फेमिनिन, तो दिस हा इज पॉइंटिंग टू दैट। तो यही इश्तिगाल का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात आपने की। ऑफ नोट जो भी कॉन्सेप्ट होगा इश्तिगाल का, या जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था बदर का कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई अतफ बयान का कॉन्सेप्ट होता है, आपने अपने मेन एराब को चेंज नहीं करना। नहीं करना, ठीक ठीक है। सो यू आर गोइंग टू से दिस इज माय मफूल बिही। बिल्कुल ठीक ठीक, आपने वल अर्दा वदाहा, इसमें भी आपने मफूल बिही इसको कहना है। और जो आपका हा, जो वदा के आगे हा है विच इज दिस हा, आप बिल्कुल उसको सिंपल प्लेन मफूल भी कहेंगे। बट नाउ इन योर माइंड यू नो कि whenever the thing which you are talking about has which is like the first one वल अर्दा, अगर उसको उसके बाद अगर कोई फेल आ रहा है जो कि किसी चीज से अटैच्ड है जो कि हा इन दिस केस, और वो पीछे जाके उसी को अटैच करे, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इबहाम, मीनिंग किसी समथिंग इज बीइंग गिवन इम्पोर्टेंस। ठीक है, समथिंग इज बीइंग गिवन इम्पोर्टेंस। ऑफ नोट मैंने उस्ताद ने मेंशन किया हुआ है कि ये हमेशा नसब होता है। आई थिंक उन्होंने नसब मेंशन किया है इसे, लेकिन देर आर एग्जांपल्स इन द कुरान एंड दिस कॉन्सेप्ट आल्सो गोज विद द दम्मा। This concept can also go with a dhamma, which actually changes everything around. Then in that case, अगर मैं इसके ऊपर वर अर्दू लगा दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इसको मुब्तदा बनाया है। ठीक है, एग्जैक्टली, मैंने इसको मुब्तदा बना के तो मैंने उसके आगे वदाहा को उसकी खबर बनाया जो कि खबर का है। एग्जैक्टली ठीक। इसमें और अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि अमरीन अब इसमें इश्तिगाल आता है कि नहीं, आपने मुझे कहना है कि फायजा इन दैट केस इवन my fail is has something which is referring back to this mubtada. Oh, okay. So then it does include the concept of ishtighal. Okay, ठीक है। So whenever you are seeing कि कोई भी status हो, रफा हो या नसब हो, अब आपको ये मैंने नया जो बात बता रही हूँ वो ये है कि then in that case you can see you just need to assess कि वदा के साथ ये मेरे फेल के साथ कुछ ऐसा तो नहीं अटैच हो के अर्थ को पॉइंट आउट कर रहा है और आप इसमें देख रहे हैं, सो आपने ऑब्वियसली आपने उसको इंक्लूड कर देना है। ऑफ नोट आपकी बात को एक चीज मैं आपको कंफर्म कर लूं, अपने मैंने जो सुना आपने कहा कि जब ये देखते हैं तो आपको इबहाम दिखता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इबहाम, आई थॉट इट वुड बी इहतमाम। व्हाट इज इबहाम? मैंने कहना था इबहाम इज अ शक। ओके, दिस इज एग्जैक्टली, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या था। ओके, इहतमाम। नहीं बिल्कुल, ठीक है, इसको ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको इहतमाम कहते हैं। बिल्कुल ठीक, इसको इहतमाम कहते हैं। और इबहाम जो होता है वो दैट इज समथिंग यू आर क्रिएटिंग शक अबाउट, कि हम जिस तरह सूरह कहफ में है कि हम कितने दिन रहे थे जिंदा, तुम कितने दिन, इतने के इतने, जब if there is something like that then it's called ibham. So I'm so sorry, this is ihtimam. हाँ ठीक है, ओके। सो ये तो हमारे पास अब क्लियर हो गया। लिल अनाम आपके पास, आपको पता चल गया कि दिस इज माय एमबीएफ, कोई इशू नहीं। ओके, लेट्स डू दिस वन। दी फीहा फाकिहतुन कैसे करेंगे? आई थिंक शायद एनी ज्वाइन कर चुकी हैं, बट आई विल गो अहेड। फीहा, मैंने इसको इस तरह लिया, फी इज हर्फ ऑफ जर, हा उसका मजरूर, इसम मजरूर होगा या प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन। तो ये just looking at as it is, I would say it's MBK मुकद्दम,
गुड जॉब। क्योंकि आगे मुझे फाकिहतुन दिख रहा है, और लेकिन यहाँ क्योंकि खैर आगे चलते हैं। फाकिहतुन जो है इट्स एन इसम मरफू एंड इट्स अ कॉमन इसम, इसलिए समझ में आया कि फीहा आगे क्यों आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया इसको। फीहा तो मुब्तदा फाकिहतुन, मुअख्खर हो गया, बिल्कुल मुब्तदा मुअख्खर हुआ विदाउट एनी इम्पोर्टेंस, विदाउट एनी इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन था तो यही स्ट्रक्चर बन सकता था। बिल्कुल। ऑफ नोट अब नाउ, फीहा हा का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आई थिंक दैट्स पॉइंटिंग टू अल अर्दू हियर अगेन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब वो अल अर्दू पे है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो अल अर्दू पे है, अर्दा पे है, सॉरी। जी। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करें कि आई वांट यू टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ फाकिहतुन, फाकिहुन, फाइलुन, ठीक, इसकी ट्रांसलेशन है फ्रूट्स, यस, ठीक है, और तामरबूता भी है, तामरबूता भी है, और उसमें फ्रूट्स इसकी ट्रांसलेशन है। सो व्हाट आई वांट यू टू लर्न इज नॉट ऑल द टाइम file structure is actually ism file. Okay. File structure can be something else too. ठीक है? That's what I want you to pay attention to. Fakihatun, here it is the fruits. ये plural है. इसका singular होता है फवाके. ठीक है? इसका singular होता है फवाके. So उस जो फवाके का plural है वो होता है फाकिहुन और फाकिहतुन in that case. So अब आपने ये भी learn कर रहे हैं कि not always आपका like you know आपका structure जो होता है they can be जो आपने सीखा हुआ है उससे outside the circle भी हो सकती है चीजें। सही। Okay, but most likely 90% of the time you are going to say कि मेरा file है, इसका file, और actually आपको पता है इसका मतलब होता है the one that gives pleasure। फाकी का मतलब होता है फाकिहुन का। ओह सुभान अल्लाह। और that is the fruits, that refers to the fruits। ठीक है। ठीक है, so concept is coming from the file, but actually this is a plural। Okay. फवाके इसका सिंगुलर है, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि किस तरह आपके डिफरेंट फाइल उनका स्ट्रक्चर है, लेकिन वो एक प्लूरल है, राइट, वो एक प्लूरल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमने कल ही देखा हो तो हमने कल बात की थी कि ता मरबूता और या की एंडिंग अगर होती है तो वो सिंगुलर होंगे अक्सर, नॉट ऑलवेज, बट दूसरे जो होंगे वो प्लूरल होंगे। और यहीं पर हम फॉरनी वी हैव कम अक्रॉस अनदर एग्जांपल व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ दैट वेरी स्टेटमेंट। एग्जैक्टली सुभान अल्लाह। ओके, लेट्स सी इफ एनी वांट्स टू डू दिस वन। एनी आप कर सकती हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं जरा घर बाहर थी और मैं तुम्हारे फायदा के अकाउंट पे चली गई थी। सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एबल टू कम एंड जॉइन इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि लाइव क्लास एक अलग क्लास होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामर में लाइव क्लास होनी चाहिए, आइडियली होनी चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एबल टू जॉइन। ओके, सो लेट्स डू दिस वन। एनी वनखलु ज़ातुल अखमाम, वनखलु ज़ातुल अखमामी, तो ये भी वनखलु जो है इसम है हमारा, मरफूआ इसम है, और फाकिहतुन से इसका अटैचमेंट है, राइट? बिल्कुल ठीक। और ज़ातु हमारा जो है ये इसमें हमसा में है, और अल अखमामी जो है वो प्लूरल है, मैंने इसको देखा कि, और इसी वजह से ज़ातु या यूज हुआ है कि ये फेमिनिन प्लूरल है। वेरी वेल डन, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। अब मुझे ये बताएं। हाँ जी, और उसके बाद जो ये ज़ातुल अखमामी है, ये मुदाफ मुदाफ अलैह है, और ये एज अ सिफा यूज हुआ है दखलुन के लिए। Very good job, excellently done, very good job. So now you are looking at something which is connected with the letter वाव। So हर्फ अतफ के साथ दो इसम खड़े हुए हैं which is both are मरफूआ। So you can easily say, और also जो इस तरह आयत भी शो कर रही है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर मौतूफ हैं, राइट। या वाव अतफ है, या आपका नखलू जो है जिस तरह हमने कल बात की थी, ये अल ऑफ जिन्स लगता है। ये डेट पाम्स जो हैं ये सबको शो कर रहे हैं, राइट। डेट पाम्स जो है इन सबको शो कर रहा है। और ये फिर आपके आगे आके आपने इस तरह कहा है कि ये एक प्रॉपर इसम था, ये एक प्रॉपर इसम है, और जब यहाँ पे आप आए तो आप देख रहे हैं कि ये उसकी सिफा खड़ी है आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये सिफा खड़ी है। और हमने ये बात कवर की थी कि देयर आर सर्टेन
बिल्कुल things which दासा are में which जू मिसला और exactly एक और वर्ड था हमारे वो गैरा था, सिफा बनते गायरा दिया हाँ जू बिल्कुल, मिसला और उसमें गैरा आपके वो कॉम्प्लिकेटेड सफा मौसूफ बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हमने बात पहले कवर की थी। इसी को दिमाग में रखते हुए जात का द वन दैट पोजेसेस, इसी को दिमाग में रखते हुए आगे चलते हैं। अमरीन आप ये पकड़े, वल हब्बु जुल अस्फिर वर रेहान। अच्छा जी, ये भी मैंने कहा है कि ये वल हब्बू जो है वल फाकिहतुन व नखलुन से मातूफ है। गुड जॉब, वेरी वेल डन। और इसम मरफू है, तो इसीलिए वही मुब्तदा ही कंटिन्यू यहाँ पर भी हुआ। और फिर जू फिर वही आ गया हमारा, इस अस्माउल खमसा में से आ गया। और अल अस्फी के साथ ये वही कॉन्सेप्ट वही बन रहा है कि जी मुदाफ अलैह है, और ये अल हब्बू की सिफा बनती है बिकॉज ये प्रॉपर है दोनों, और अल हब्बू भी प्रॉपर है। वेरी वेल डन, वेरी गुड जॉब, एक्सीलेंटली डन, एक्सीलेंटली डन। और ये पे वही हमने बात करनी है, ग्रेन्स ट्रांसलेशन सारी प्लूरल चल रही है, शक्ल उसकी लगती है लाइक प्रॉपर सिंगुलरिज्म। ठीक है, अब आप ये कॉन्सेप्ट देखिए कि किस तरह अल यूज होता है। अच्छा, आपने जहां तक ये जू की बात की थी, हमने ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, आज हम जू कवर करेंगे। और मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि जू जो होता है दैट इज वन ऑफ दोज, एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम 5 जो है आपके अस्माउल खमसा, दे आर यूज्ड एज मुदाफ, राइट। और इसका जो आपके पास टेबल अब आपके पास आ गया होगा, मे बी आई एम एबल टू ओपन टू, ओके लेट्स सी, यस आई कैन, अल्हम्दुलिल्लाह। सो देखिए ये जो है ना, इसकी शक्ल जो है ज़वुन है, ज़वुन उसकी शक्ल है। लेकिन आपको ये पता है कि अरबिक लैंग्वेज में वो हमेशा चूंकि मुदाफ होता है उसको लाइट करना पड़ता है। ठीक है, और जब आप उसको लाइट करते हैं तो ये जो ज़ऊ की आवाज है दैट डज नॉट साउंड गुड। ठीक, जो ज़ऊ की आवाज होती है दैट डज नॉट साउंड गुड। जब हम उसको लाइट करते हैं तो तनवीन तो हटाते हैं, लेकिन वाव के ऊपर जब सुकून लगता है तो वाव के साथ मैच करते हैं फिर ज़ू की हरका को। ठीक है, एंड दिस इज वेरी कॉमन थिंग डन इन द कुरान, इट्स नथिंग न्यू, very commonly done, something very common. So zu, za, zi, zu, za, zi. और ये जो आपके पास सराउंडिंग आपको ये लिखी हुई नजर आ रही है, this is the slide or this is the work excellently done by Varda Appa. I requested her and like she was so happy to share her stuff with us. Alhamdulillah. ये आयतें नंबर लिखी हैं 13 सूरह 13 में 6 आयत में ये जू यूज हुआ है, 65 में 7 आया में जू यूज हुआ है, 51 में 58 आया में जू यूज हुआ है, 6 में 148 आया में. Look at how if you are using your time wisely, what do you do then? Subhanallah. अज़ा की एग्जाम्पल है 68 सूरह नंबर 68 आया नंबर 14 में ज़ा यूज हुआ है, 23 सूरह में 77 आया में ज़ा यूज हुआ है. Subhanallah, you can see, Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless her and put lots of barakah in her knowledge, how these words are used in the Quran, right? So this is not something very unusual. They are used in the Quran. So अगर आपके पास टाइम हुआ जरूर जाके देखिएगा, टाइम तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है टाइम तो देन इशू है, लेकिन ये समथिंग वी कैन पे अटेंशन. और जब आपके पास इसकी जू का बिल्कुल मुस्लिम चार्ट पे जाते हुए डुअल देखे, ज़वैनी, राइट, वैनी मुस्लिमैनी, ज़वानी सॉरी ज़वानी इसका मुस्लिमानी है, और फिर ज़वैनी इसका नसब और जर स्टेटस है. सो अब आपके पास कुरान में ज़वा यूज होगा, ज़वै यूज होगा, क्योंकि कुरान में ये यूज चूंकि एज अ मुदाफ होता है, इसके लिए इसका लाइट स्टेटस ही यूज होता है. ठीक है, हमने ये याद रखना है कि यू विल नॉट सी दीज एक्चुअल वर्ड्स इन द कुरान, दीज वन जू या ज़वै नहीं आप देखेंगे, आप उलू को देख लेंगे लेकिन आप ये नहीं देखेंगे. ठीक है, आप इनको हमेशा जू, ज़ी, ज़वा, ज़वै इस तरह देखेंगे. और ये इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आते हैं तो बनता है उलू. इसकी प्लूरल जो होता है, दो प्लूरल होते हैं उसमें, उलू, उली, उली. आयत numbers are again mentioned so that you can go and check it out and enjoy. इसका एक और भी प्लूरल होता है जिसका जो कि नॉर्मल प्लूरल की तरह लगता है, जो कि होता है ज़वू, ज़वूना. ठीक है, ज़वी, ज़वी,
ज़वूना, ज़वी, ज़वी, ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है, ये आप लिख लें। ज़वूना, ज़वी, ज़वी, नॉट ज़वई, ज़वी, मीनिंग ज़वीना, मुस्लिमीना, ज़वीना। ओके, एक और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं, उलुल अलबाब, सुभान अल्लाह, कुरान हैज मल्टीपल टाइम्स हैज मेंशन्ड इट, सो नथिंग लाइक, बिल्कुल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ओके, जब हमने ये जू का टेबल था, इसके जू का फेमिनिन होता है ज़ाता, जू का फेमिनिन होता है ज़ातुन, क्योंकि वो भी मुदाफ की तरह यूज होता है, उससे उसको भी लाइट करते हैं, मीनिंग ज़ातु, ज़ाता, ज़ाता, ज़ाती, बिल्कुल जिस तरह रेगुलर इसम होता है, ज़ातु, ज़ाता, ज़ाती। और उसका जो प्लूरल होता है उसमें खास बात, सॉरी डुअल में खास बात ये होती है, उसमें वाव आते हैं, ज़वाता, ज़वातैना, which is in the mudaf form will be ज़वातै, ज़वातै। ओके, सो ज़वातै, ज़वातै, ये इसी की लाइट फॉर्म है। और फिर आपके पास आता है उलातुन, सॉरी उलातु, उलाती, उलाती, अगेन चूंकि वो मुदाफ है इसलिए ये दोनों चीजें यूज होती हैं लाइट फॉर्म में। ओके, so just keep that in mind, inshallah. I hope that will help you, inshallah. Okay, so as you have already mentioned, fiha, fiha is mbk, fakihatun, ये सारा का सारा उसका मुब्तदा है, ठीक है। और चूंकि मुब्तदा के फाकिहातुन से स्टार्ट की है, इसलिए आप यही कहेंगे कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, इन इट इज fruits and date palm trees and grains, and the, like, you know, these are zu, habbul, asfi wa rayhan. There are multiple opinions about these two words, asfi और rayhan के मुतालिक multiple opinions हैं. Some people say that they are the parts of the plant, ठीक है। एक ग्रेन तो एक पार्ट है, लेकिन जब येलो पार्ट अगर आप देखें कॉर्न में भी, आप कुछ पार्ट ऑफ योर एक्चुअल क्रॉप यू डोंट ईट इट, राइट, यू डोंट ईट इट। सो बिल्कुल ये अस्फ वो है, जब आपने देखा था अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बि अस्हाबिल फील लम यजअल कैदहुम फी तदलील, ये वो अस्फ है, कल अस्फ माकूल, ये ऐसा अस्फ है। अस्फ जो होता है, many people say that they are the part of the plant which you can eat, but rayhan is the one that you cannot eat. Okay, or vice versa. So there are multiple opinions. We are not going to go into the tafsir, but there are the parts of the plant. अभी हम ये कर लेते हैं कि they are the multiple various parts of the plants. So rayhan को आप कह रही हैं it's also pointing towards the wal habbu? नहीं, this is a separate part. It's a separate, ना? Okay. Yeah, this is a separate part, क्योंकि अगर ये उसका मुदाफ अलैह होता तो तब उसको रैहानी होना चाहिए था। बिल्कुल। ठीक है, और क्योंकि अब मैंने क्यों कहा, इसका रूट लेटर है रा वा हा जी, इसमें एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने रेहानी क्यों कहा, जबकि मुझे ये पता है कि अलिफ नून पे जो इसम एंड होता है वो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं मोस्टली। ओके, एक और मैंने धमाका चीज मारी है उसमें। मैं किताबें ढूंढ रही हूँ अपने, कहाँ जाना है मुझे इस पॉइंट को नोट करके। मोस्टली व्हेन यू सी द नेम्स, ये जो वर्ड रहमान है, इट इज एक्चुअली पार्टली फ्लेक्सिबल। आपने उसके आगे अल लगाया हुआ जिसकी वजह से वो फुली फ्लेक्सिबल है। फुली फ्लेक्सिबल हो गया। गॉट इट। ये हमने जो पिछले जो हमने बातें की हुई है वो हमें थोड़ी सी याद होनी चाहिए। सो मैंने आपको इसलिए कहा है कि ये रैहानी है क्योंकि अल लगा हुआ है, ठीक है। उसको याद रखना है। अच्छा, मेरे दिमाग में ये आ रहा था इन अलिफ नून, अलिफ नून जो एंड होते हैं ना उसमें आते हैं। हाँ जी, मैं ये समझी थी कि रेहान जो है री से तो नहीं निकला हुआ कि ये उसकी, वो तो हवा होती है, वो हवा होती है ना, तो यही। हाँ जी, either ways किसी से भी निकला हुआ, अलिफ नून is not the part of the word. Okay. Right? अलिफ नून is not the part, so we can say, जिस तरह हमने अभी कल बात की थी आतिशान में, नौमान में, they are not, अलिफ नून is not the part of the word. So those are all the partly flexible जिस हमने बात करी थी ना, उसमें अगर आपके पास yeah, just I would not go into that detail, वो बिल्कुल ही blast off कर जाएगा आपका mind. Okay, this is already very heavy. So let's stay here कि ये हो सकता था। फाइजा, I have a question. जी। Maybe मैंने मिस किया और शायद तुमने बता दिया, मैंने लेट ज्वाइन किया। तो ये जो कल वाले लेक्चर में जो अल था, उस हिसाब से ये जो है ये जिन्स में आएगा या ये? बिल्कुल, हाँ, ये भी हमने बोला है एक्चुअली, because it's parts of plants. Exactly, ये बिल्कुल ये वही वाली, ये सारा वही है।
ठीक है, ये सारा वही है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जिन्स है? बिकॉज इफ इट इज लाइक अ कैटेगरी, लाइक अन्नास जो है वो मैन काइंड हो जाता है, मगर अगर अल किताब कहें तो कुरान में वो कुरान होता है। हमें ट्रांसलेशन और कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। अच्छा, ठीक है, हमने देखा, हमने जब की थी ना ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, बार बार हम ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है ना कि देखो अगर हम फरहीन, हम ये, इट्स नॉट लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट वन ग्रेन, राइट? माइंड भी कहता है कि नहीं ये ग्रेन्स हैं। हाँ। ये जो बात हो रही होगी कुरान में अर्थ के अंदर, तो लाइक फीहा इन इट, इट मस्ट बी प्लूरल। और अगर आप जाके देखेंगे तो उसकी वो ज्यादातर जिन्स में जाते हैं बिकॉज वो कैटेगराइज हो जाते हैं इतने सारे उसमें। I would not, I don't know the answer to this. This is a tricky statement, जो tricky question है. Okay. So the plural जो होते हैं वो जिन्स, what is the, say rephrase your, दोबारा से क्वेश्चन पूछे हम फरहीन। मैं ये सोच रही थी कि जैसे मीजान, रेहान, नहीं, मीजान जो है तो कुछ, not always, just keep in mind that can be the case, meaning कि अगर आपको ट्रांसलेशन में नजर आए, go with the translation is going to win। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मीजान डिफरेंट मीन्स ऑफ मेजरमेंट्स है, राइट? तो ये कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। Okay. और ये आपको पता है, ये एक कैटेगरी भी हो सकती है, एक मीजान की बात भी हो सकती है, ये दोनों हो सकते हैं। ये मीजान डे ऑफ जजमेंट का मीजान भी हो सकता है, व्हिच कैन बी, बिल्कुल। और जो पर्टिकुलर मीजान जिससे आप फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम डील कर रहे हैं, ये वो मीजान भी हो सकता है। इट मे नॉट बी ऑल द मीजान्स, तो ये दोनों तरीके से आ सकते हैं। तो हम दोनों तरह इसको सोचे, राइट? बिल्कुल, तो आपने अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखें दोनों के लिए, ठीक है, दोनों को ओपन रखें। लेकिन कुछ चीजें तो बिल्कुल क्लियर कट आपको पता चल रही है कि लाम ऑफ जिन्स है, ये नहीं कि नखलू में भी और अलहबू में भी। So yeah, that is very clear. Okay, next comes the most, I would say, the ayah which is repeated for a reason. There is a reason why Allah subhanahu wa ta'ala has not repeated it twice. Subhanallah. If the ayah is repeated twice, or the concept or the same word is repeated twice, there is always a reason for that. What to say of 31 times same ayah? Same ayah. Subhanallah, can you imagine the intensity? What we are dealing with? Same ayah, more than 30 times ऊपर repeat हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि that has I don't know कितनी दफा, कितनी importance है इस आया की, और कितना ये concept कितना important है for us to actually ignore. So अब आपके पास हम आया शुरू करते हैं इंशाल्लाह। फरहीन, would you like to try this ayah? या कौन सी आया है? Ayah number 30. कभी आई आले रब्बी कमा तो कज़्ज़िमा, यही ना? हाँ बिल्कुल। जो ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो फ जो है वो हो जाएगा आपका हर्फ, एंड उसके बाद एक सेकंड में कुरान में निकालूं। और ये तो है, ये जैसे वो होता है ना अय्युहुम विच। गुड जॉब, वेरी वेल डन। हाँ, वेरी गुड जॉब। इसको ग्रामेटिकली मुझे नहीं पता कैसे को करूं कैटेगराइज। अभी बोलो, खोलो इसे, बी आई को खोलो। बी आई ओके, जार मजरूर। गुड जॉब, वेरी वेल डन। और ये बी आई नहीं है, क्या है ये वर्ड? आई। गुड जॉब। ये को कसरा को लाइट रखना है, कसरा को कसरा की तरह लेना है, ठीक? बी आई। सब आपने कहा कि बी इज माय, क्या बी को भी क्या कहा है हमने कि ये मेरा जार मजरूर। नो इशू, जार मजरूर हो गया, नो इशू विद दैट, राइट? हमने एक वो जो था ना, क्या नाम है इसको, मैंने आई एम होपिंग कि मैंने बुक खोली हुई है कहीं पर। ओके, ये हमने पढ़े थे, सुभान अल्लाह, लेट मी जस्ट ओपन अप, कि आपके पास जब स्पेशल मुदाफ आते हैं, स्पेशल मुदाफ आते हैं, ये देखेंगे वाला। कैन यू सी माय स्क्रीन, पेज नंबर 34, जिस पे आपके नहू का जी दिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो लुक एट दिस वन, ये आपका भी यही था, ये वही है, दिस वन, ठीक है, ये वही है। इसमें जो इस स्पेशल मुदाफ में खास बात ये थी
ये जो लिखी हुई है नीचे, they do not denote time or place and they can appear in any status. ठीक है, they don't denote time or place. सुभान अल्लाह, मैंने पागल कर दी इसको स्क्रीन को. ठीक है, ये जो आयु है, you can see that in any status, and this time in your surah रहमान you are seeing that in jar status, क्योंकि आपके पास लेटर बी आया हुआ है उसमें. ठीक, तो इसमें कोई वो नहीं है मसला. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह. अलाई, फबी अय्यी आलाई, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ये मुदाफ मुदाफले हो गया. फिर गुड जॉब, ये मेरा मुदाफ, अय्यी इज माय मुदाफ, स्पेशल मुदाफ, राइट? स्पेशल मुदाफ, तो उसने इसको मुदाफ इलैह कर दिया. गुड जॉब, गुड जॉब. एंड गो फॉरवर्ड. फिर रब्बिकुमा, तो रब्बिकुमा इज आल्सो मुदाफ मुदाफ इलैह. गुड जॉब. इसको कैसे कनेक्ट करूं इससे? अलाई से, ये भी दोनों आपस में भी मुदाफ मुदाफ इलैह हो सकते हैं. वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब. यस, एग्जैक्टली. सो यू स्टार्टेड विद बी, यू कैन सी कि अजर मजरूर, यहाँ से आगे गए तो पहला इदाफा है, सेकंड इदाफा अलाई रब्बी, रब्बी कुमा इज योर थर्ड इदाफा, थर्ड इदाफा. गुड, ओके, लेट्स एंड देन गो फॉरवर्ड. तुकज़िबानी, and it is fail mudari. और ये fail mudari है, ये second person है, मगर ये dual है. Dual, good job, very well done. So you just, alhamdulillah, you know that this is my dual fail mudari. And अब मैंने इसको क्या कहूँ मैं, ये जो बी अय्यी अलाई रब्बी कुमा के मैं क्या कहूँ इसको, ये कौन है, कैसे लेबल करूँ इस पूरे कहानी, इसको जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है? मतलब ये कौन सा जुमला है, ये पूछ रही हो? हाँ बिल्कुल, हाँ. ये जुमला इस्मिया हो जाएगा ना? कैसे? इसका मुब्तदा किधर है? इसका मुब्तदा ही मैं ढूंढ रही हूँ. रब्बी, अगर नहीं नजर आ रहा तो क्या करूँ? ये कह दूं कि ये मेरा जुमला फेलिया है एक्चुअली, और ये मेरा MBF मुकद्दम है, क्योंकि ये जार मजरूर से शुरू हो रहा है. हाँ. ओ, तो ये एम्फसाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको फिर इसके बाद, बिल्कुल बिल्कुल, MBF मुकद्दम है. हाँ हाँ, MBF मुकद्दम है और ये आपका फेल है. ठीक, ये रब्बी को नहीं, क्या फेल है? तो कज़िबान, हाँ, तू कज़िबान तो फेल है, लेकिन ये फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा उसका वो है ना, MBF मुकद्दम, और ये मुतल्लिक, ये ताल्लुक इसका इससे हो गया, राइट? हाँ, मुतक़ज़िबान से ताल्लुक है. हाँ, मुतालिक बिल फेल जो है, ये फेल मुतक़ज़िबान ही है ना? हाँ, ये मुतालिक बिल फेल तुकज़िबान है ना इसका? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, इस आयत को I want you to pay a lot of attention to this ayah. The something that I want you to pay attention to is this thing, which was very fascinating for me. ये क्या हुआ इधर? ये कौन है? फा. ठीक, मुझे इसमें एक सवाल था इस वाली आयत के लिए पहले, if I could ask. चलें ठीक है, आप पहले पूछें. मैं से पूछ रही क्योंकि वो फबी आई है कि उसमें कॉन्सेप्ट में था. Seem to me as if it's a जवाब शर्त somewhere, but where is the शर्त? फा के अंदर. फा के अंदर पूरी शर्त है. फा के अंदर पूरी शर्त है. सुभान अल्लाह. If you will, if you really look, then how would you, which of the ayahs of the Rabb you will deny? तो ये अदवात शर्त हुआ ना? No, I would not say कि मैं इसको अदवात शर्त में नहीं लेके आऊंगी. ये अदवात शर्त नहीं है. शर्त जो होता है, अदवात शर्त जो होता है वो इन लहू उस तरह की चीजें हैं. फा इज नॉट अदवात शर्त. अच्छा, नहीं, वो तो जवाब शर्त में आएगा, तो इसका फिर अदवात कहाँ गया? था. Exactly, that was called, बड़े दरवाजा बंद कर जाए. That is called fa rabta. So I want you guys to learn the different types of fa. Okay, and this is the fa which is called the fa fasiha. ये अगर आप अपने उसके नोट्स खोलेंगे, let me just delete this one.
क्योंकि ये तो आयत, इस आयत को तो आगे पीछे आपको ये तो आयत आनी चाहिए ना, ये तो हम सभी को आनी चाहिए। सो लेट्स लुक एट दिस वन। इसके अराब खोले मैंने, तो ये अराब ये आते हैं। लेट्स सी, आपको नजर आ रहे हैं मेरे अराब खुले हुए? बिल्कुल, ये देखिए, फबी अय्यी फा फसीहा, ये करने लगा है फसाहत, ये करने लगा है कोई चीज एक्सप्लेन, ठीक है, ये कोई क्लियर है, कोई चीज एम्बिगुअस है, इसको क्लियर करने लगा है। सो व्हाट इज मेंट बाय फा फसीहा इज, इफ यू रियली लुक, इस आयत में इसका मतलब होता है कि देयर इज अ शर्त हिडन विद इन दिस फा, यानी कि इस फा से पहले कोई शर्त है, इस फा से पहले कोई शर्त है, ठीक है। मीनिंग मैं ये कह रही हूँ एक्चुअली कि वी हैव गिवन यू सो मेनी, इफ यू लुक देन which of the blessings of your Rabb you will deny? If you look, if you pay attention, then which one will you deny? ठीक है, मेरी बात ये यहाँ इस तरफ इस आयत में समझ आई है कि मैंने क्या कहा है? It's really important for you to get it. फरहीन, मेरी बात समझ आई है? हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि इसका फिर शर्त कहाँ है, तो शर्त पहली आयत तो पहले शर्त महजूफ है। अच्छा, शर्त नजर नहीं आ रही, महजूफ है। ये वाला फा जो होता है, इससे पहले एक शर्त होती है जो कि महजूफ होती है। तो फायजा की शर्त महजूफ हो और ये तब पता चलता है कि ये फा फसिया है। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि शर्त वाली बात हो रही है, ठीक है, वरना अगर जवाब शर्त के साथ तो अक्सर अदवात शर्त या फेल शर्त होता है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो एक अलग स्टोरी है, उसमें तो शर्त होती है, उसके साथ कुछ लगा होता है उससे पहले। हाँ, फिर और इसके साथ क्योंकि कुछ नहीं है तो ये फसिया होगा, because this itself will explain what it is, right? Exactly. इसमें you may not be able to pick this fa. मैंने इसको देखा है तो मुझे पता चला है कि फा फसीहा है। जब मैं अब इसको देखें, मैं इस तरह किस तरह खोलना चाहिए इसे, ये शर्त वाला फा फसीहा क्या होता है? फा फसीहा जो होता है आपका, उसमें एक शर्त छुपी भी होती है। मैं आपको आपने आयत की है सूरह बकरा की, आपने कवर की आयत, ये ले, इस आयत को गौर से देखना है, ठीक है, इस आयत को गौर से देखना है। وَإِذِ Musa, so when Musa asked liqaumihi for his people, so when Musa asked, فَقُلْنَا, then when he asked, then we said, idrib bi asaq al-hajr, you strike with your asa, the hajar, the rock. Fan fajarat, then it came out. What happened here? ये वाला फा, अब मैं सवाल ये बनता है, नहीं इसमें ऐसा लगा है ना कि when he struck then it came out, when he struck with his asa the hajar, then came out the minhu asna 12 strings. So there is a part which is missing, shart is missing. When he did, then it opened up or bursted. This fa is also fa fasiha, क्योंकि इसका मतलब इससे पहले एक पार्ट था जुमले का which is not mentioned. फन फजरत, then when he struck, then it opened up. ठीक है, it's more like a बलागा, लेकिन इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी कि फा की टाइप्स कैसे चेंज होती हैं, ठीक है, एंड आई विल बी शेयरिंग द नोट्स विद यू टू, सो इट विल बी getting better. It was hard for me to understand this concept, so but I'm hoping I should be able to make it clear that there are multiple types of fa. You have done fa rabta only, जो कि शर्त में आता था. You have done fa ataf, जो कि connect करता था. This is the fa fasiha. और इससे पहले एक शर्त, इससे पहले एक hidden महजूफ शर्त होती है, जो कि के सेंटेंस के एक्शन होता है, फिर उसका रिएक्शन आता है. एक्शन इसमें ये था, when Musa alayhi salam actually struck, then it opened up, then came from it the isna ashara aina. Okay? अच्छा, इसमें वैसे हमने शायद पहले ऐसे किया था कि वा इज आया हुआ है तो फा कुलना को भी वो उससे कनेक्ट कर रहा है, राइट? देन दे सेड, वी सेड, और फन फजरत जो है इसका, इस फन फजरत का पहला वैन नहीं है, इसलिए ये हिडन है, ये फा फसीहा है, राइट?
मुझे यानी आपकी बात नहीं समझ आई। नहीं, जो हमने पहले आया खोली थी ना, तो वाइस था ना पहले, जैसे वाइस कस था, तो हमने उससे कनेक्ट कर दिया था और हमारे समझ में आ गई थी कि व्हेन ही स्ट्रक, राइट? हाँ हाँ, है ना? लेकिन ये आपने then we when he called ये एक्शन when मूसा अलैहिस्सलाम asked then we said, ये बिल्कुल फाकुलना इसका हो गया, लेकिन इस फा का इज नहीं था। सपोज, मतलब मैं एक बात कह रही हूँ, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये फसीहा फा है, राइट? आपको ट्रांसलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, then you will be able to open। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट जब हमने ये आया किए, तो हमने शायद इसको इसी इससे दोनों फा को कनेक्ट करके और समझ में बात करते हैं। यस एग्जैक्टली, हमने किया था कि ये फा राब्ता था कि then it came from it। बिल्कुल, ठीक है, then it came। लेकिन अब हमें पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक्चुअली इसको डिफरेंट ये फा फसिया होता है। और ये तो हमें पता होना चाहिए कि द रीजन फॉर डूइंग सूरह रहमान इज कि जो आपके सामने एग्जांपल आएगी ना, वो आपको भूलेगी नहीं। नेक्स्ट टाइम कुरान में जब फा आएगा, तो कोई भी इस फसीहा का टाइप का फा आएगा, अगर मैं कोई किसी और टाइप का किसी और फा को फा फसीहा कहा जाए, तो आपको फौरन याद आएगा कि सूरह रहमान में आपने आयत पढ़ी थी, इसमें फा फसीहा था। ठीक है, तो अगर आपसे बाकी भी ये नहीं आपने करना, आप सारे फा को घर जाएं, घर नहीं जाएं, कुरान खोले, आप फा को हर फा को फा फसीहा ढूंढने लग जाए। डोंट डू इट। First go through the translation and the tafsir, and then you should be able to find। Okay, so we can go in forward inshallah। Let's see कि मैं कहाँ पर थी। हाँ जी, मैं यहाँ पर थी। फ़बिअय्यी का ये this is my fa fasiha, and then बिअय्यी आलाई रब्बिकुमा is my MBF and my fail is तुकज़्ज़िबा। और ये तो बहुत ही आसान है। ये मेरा ख्याल है कि अमरीन आप खोलें। हाँ जी, खलका जो है जुमला फेलिया है, खलका फिल मादी फाइल हुआ हो गया, अल इंसाना उसका मफूल भी, और यही यहाँ पर भी वो लामल जिन्स जो आप कह रही हैं वो उसका ही होगा। बिल्कुल हाँ। मिन हर्फ ऑफ जर, सलसालन उसका इस्म मजरूर, तो ये आपका हो गया MBF। और कल फखारी जो है वो भी का उसका हर्फ ऑफ जर होगा, और अल फखारी जो है वो उसका इस्म मजरूर होगा। और दिस इज गोइंग टू बी इट्स एन MBF, या हम कहें मुतालिक बिल सलसाल। बिल्कुल, मैंने यही कहने लगी थी कि अगर आप इसको मुतालिक बिल सलसाल कहेंगे तो देन विल मेक मोर सेंस। सलसाल की बात हो रही है कि सलसाल ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा आवाज निकाले। ठीक है, so that makes sense। good job, very well done, good job। so फायदा ये इसकी सलसाल की सिफा हो सकती है कि ये जार मजरूर है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक्चुअली दिस इज अ सिफा। आई एम लुकिंग एट इट, वो सलसाल तो वैसे भी कॉमन था। बिल्कुल, ये इसीलिए मैं हाँ बिल्कुल, वेरी गुड जॉब, एक्सीलेंटली डन, बहुत अच्छा पिक किया। ओके एनी, अब आप ये करें वो खलकल जानना। वा एंड खलका मादी हुआ, अल जानना जो है उसका मफूल है, मिन मारिजिन वो MBF हो गया, जार मजरूर है और उसके, और मिन नारिन सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये है तो जार मजरूर लेकिन एज अ सिफा ऑफ मारिजिन। वेरी वेल डन, गुड जॉब। अच्छा, यहाँ पे हाँ जी, एनी आपसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगी। ये फ़बिअय्यी आलाई रब्बिकुमा, ये कुमा कौन क्या है? एग्जैक्टली यही मैं पूछने वाली थी। ये कुमा और तुका जबानी हुमा फॉर्म में शुरू हुए, और ये इंसान और जिन को रेफरेंस करते हैं, इसलिए मैं यहाँ रुकी थी। मैं यहाँ रुकी थी कि ये डुअल में क्यों आ रहा है, तुका जबानी भी और रब्बिकुमा भी। तो आगे पढ़ के ये इंसान और जिन दोनों को रेफरेंस करते हुए इसलिए ये डुअल फॉर्म में। वेरी वेल डन, वेरी गुड जॉब, वेरी वेरी गुड जॉब। और हमने ये बात याद रखनी है कि देयर आर दिस इज वन ऑफ द ओपिनियन। ठीक है, ये वन ऑफ द ओपिनियन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन इज कि ये दोनों जिन को और इंसान को रेफर कर रहे हैं। Of note, the other opinion says this is actually, it's a really interesting opinion. They say that this is insan is my first entity, dobara insan is my second entity. It is to shake insan even more. There is a repetition in this word. Cannot like मुझे ही कोई अल्लाह सुब्हान तआला मुखातिब करें, फिर मुझे दोबारा करें, यानी कि मुझे थोड़ा सा और तरीके से शेक कर रहे हो। Can you imagine? It's another
हाँ, मैंने इसको इस तरह से लिया था कि अल्लाह ताला ने जमीन पे 2 ही इंटेलिजेंट मखलूक भेजी, राइट? That is one of इंसान और जिन। that is the strongest opinion. Yeah. जो आपके, लेकिन दूसरा जो आपको मैं दूसरी साइड दिखाना चाह रही हूँ कि कितनी whenever we are opening the ayahs, there is so much which is hidden from us. सुभान अल्लाह, मुझे जो कुरान का एक सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात लगती है वो कभी वो ये नहीं है कि अगर मुझे आता है कि 1 + 1 = 2. No, in Quran 1 + 1 is maybe 100 and 1,000. We never know how the ayahs are being taken. What is the sense of the ayahs? So may Allah subhanahu wa ta'ala increase our understanding, inshallah. Okay, so इसमें कोई अलजान के वर्ड्स को जरा एक्सप्लेन करोगी, ये क्या है? जीन से, हाँ, जिन से तो निकला है, ये मैं समझ गई। जीम नून इज अ रूट लेटर। हाँ, और जिस तरह जिन जो है ना, वो पूरा इसम जिन्स है। जिन जो होता है वो एंटिटी, पूरी एंटिटी के लिए होता है, ठीक है? जिन जो होता है, जब हम जिन की बात करते हैं ना, वो उसमें एक जिन नहीं है, वो इब्लीस इज नॉट ओनली, बिल्कुल वो सारे जिन है उसमें। बिल्कुल उसी तरह अजान इज अनदर पार्ट, इट इज इसम फाइल। फरहीन ये शाक का है, ठीक है? हमने किया था ना मुदाफ में, शक्का या शक्कू, जन्ना या जन्न, ये वो है, शाक का आता है, इसका जो वो है, इसका जो सर्फ है, ये फाइल है, ठीक है? दिस इज द फाइल, इंशाल्लाह वी विल कवर दैट। मैंने बाकियों के साथ नहीं किया हुआ कवर, लेकिन ये मुदाफ का ये फाइल है। लेकिन इसमें भी चूंकि अब आपको पता चल गया है कि आप पूरी एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पूरी एंटिटी को अल उसको शो कर सकते हैं। अगेन द ओपिनियन इज इट कैन बी रेफरिंग टू सिंगल एंटिटी। अब इसमें इब्लीस की शायद बात हो रही हो, और अल इंसान में इसमें आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही हो, ठीक है? इसमें दोनों, इन आयतों को दोनों तरीकों से लिया गया है, एज अ सिंगुलर एंटिटी भी और प्लूरल भी, यानी कि प्लूरल इन द सेंस पूरी कैटेगरी। और अलजान को सिंगुलर भी लिया गया है और प्लूरल भी लिया गया है, दोनों में ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, दोनों में ले सकते हैं इसे, ठीक है? ओके, अगेन हमारी जो आयत आई है फा फसीहा के साथ, MBF मुकद्दम के साथ, और फेल मुदारे आपका जो मेन ऑब्वियसली फेल है विद द फाइलुहु हुमा। ओके, देन कम्स दिस आयत। फरहीन ये वाली आयत करो। कौन सी है ये? आयत नंबर 17, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी। तो ये तो हो गया मुदाफ ले, रब्बुल मशरिकैनी। गुड जॉब। और ये अगेन इट इज ये उसमें है अपना नसब में जर हो गया ये आईनी। गुड जॉब, वेरी वेल डन, वेरी गुड जॉब। डुअल होगा ना? ये बिल्कुल ये डुअल है, मशरिकैनी और मगरिबैनी डुअल है, ठीक है? ये दोनों डुअल हैं। हाँ। ओके, लेट्स गो बैक। किधर गया? अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आप नोट करें, इस आयत में ये रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी किसकी बात हो रही है? रहमान की। एग्जैक्टली, ये वो जो ऊपर से शुरू हुआ है ना, ये वो ही है। ये बदल है? इज दिस बदल? दिस इज एग्जैक्टली। अब इसको हम देख भी लेते हैं कि किस तरह उन्होंने इसको खोला हुआ है। क्या कह रहे, किसकी बात हो रही है? इंसान की? रब्बुल मशरिकैनी रब की बात हो रही है ना? ओके ओके। अब ये देखिए इसमें क्या हुआ है, रब्बुल मशरिकैनी खबर, मुब्तदा इज महजूफ, मीनिंग कि वो ये कह रहे हैं कि हुआ रब्बुल मशरिकैनी और रब्बुल मगरिबैन, ठीक है? वो ये कह रहे हैं कि हुआ रब्बुल, लिखा हुआ है which is हुआ रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, ठीक? अब आप दोबारा अपनी आयत पे जाएं, इसी के ऊपर दोबारा जाते हैं। अगर हम इसी पे जा रहे हैं, ये नहीं अभी तक समझ में आया कि आई मीन जब कहीं पढ़ो या आप बता रही हैं तो समझ में आता है कि दैट हुआ इज माज़ूफ। अच्छा, एक लेकिन बात हमने ये याद कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि कहाँ होगा वो। अच्छा, एक हमने बात याद रखनी कि जब आपके पास इस तरह की आयत हो ना जिसमें आपके पास सिर्फ मुब्तदा नजर आ रहा हो,
जी ठीक है, जिसमें मुब्तदा सिर्फ मुब्तदा हो, बाकी आपको कुछ पता ना चल रहा हो कि खबर है कि क्या है, मोस्ट लाइकली उसके आगे हुआ लगाएं, ओके, उसके आगे ठीक है, हुआ लगाएं। सही, अच्छा, एक और जो ठीक बात इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आपको ये कहती कि रहमानू की बात हो रही है, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है स्टेटमेंट, ये रहमानू की बात हो रही है। अगर आप ये कहेंगे ना फायदा, ये बदल भी हो सकता है, राइट, इट इज राइट, क्योंकि दोनों का स्टेटस मैच कर रहा है, दोनों का हर चीज मैच कर रही है, आप देख रहे हैं उसके सब कुछ मैच कर रहा है, रब्बू एंड रहमानू सेम, दोनों प्रॉपर भी हैं, सबको सारा कुछ मैच कर रहा है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, एनी से मेरा क्वेश्चन है, एनी मैं ये कह लूं कि ये रब्बी कुमा तो कज़िबान, ये इसकी, ये रब्बी कुमा का बदल है, रब्बुल मशरिकैन व मग़रिबैन, ये कह लूं? रब्बी कुमार कह सकते हैं लेकिन कि इसका मगरिब तो और स्टेटस, मशरिक के दो, हाँ, इसका स्टेटस नहीं मैच करता। अगर ये होता ना रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन, तो मैं कह सकती थी। मतलब मैं क्वेश्चन वैसे दोबारा बोलना समझी नहीं कि मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो रब्बी है, इसमें रब्बी लिखा है, अलाई रब्बी कुमा, मैं ये कह सकती हूँ कि ये रब्बी कुमा का बदल है, ये रब्बुल मशरिकैन वल मग़रिबैन? ये कैसे हुआ, कुमा क्योंकि से ये तो लग दो रहा है है, कि ये एक मशरिक और है। मगरिब है, मशरिक मगरिब क्या कुमा को रेफर, कुमा रेफर कर रहा है मशरिक को मगरिब को, ठीक है? No. You're going off track now. Come back. Okay, let's see. Let's look at this ayat again. So, which nameth of your Rabb of you two? Huma. इसमें Rabbi is singular. Rabbi is a singular Rabb. Belong करता है वो हुमा से, ठीक है? रब्बी को सिंगुलर रखे हैं, रब्बी कुमा। सुभान अल्लाह, ये क्या हुआ? ओके, ओके, सो रब्बी जो इसमें, चूंकि रब्बी इज अ जर स्टेटस, सो यू आर नॉट गोइंग टू से कि ये मेरा रब्बुल मशरिक कहीं नहीं है, वो रब्बू नहीं, उसका बदल हो सकता। अगर ये रब्बी होता तब आप आराम से कह सकते थे ये मेरे रब्बी कुमा का बदल है, क्योंकि दोनों का स्टेटस मैच करता है। इस टाइम नहीं है बदल, ये रब्बी कुमा का बदल नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत पहले जाएं तो रहमान का हो सकता है। ओके, समझ आई है नहीं? बदल में आपका स्टेटस मैच करना जरूरी है। मतलब बात तो रब्बी कुमा तो इंसान और जिन के लिए ही यूज हुआ है। नहीं, जिन के, उसके लिए, इंसान के लिए नहीं यूज हुआ ना, जिन के लिए। नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो तुम दोनों का जो रब है वो, हाँ, वो उसका जो कॉन्सेप्ट है, एनी कॉन्सेप्ट ना हिलाएं, वो रब्बी है, रब्बी इज अ मेन थिंग। रब ऑफ यू टू, कौन सा रब? अगर ये बदल होता तो ये होता रब्बिल मशरिकैनी, कौन सा रब? रब ऑफ द मशरिकैन एंड द रब ऑफ द मगरिबैन। वो रब की बात हो रही है, कुमा को बीच में मत लेकर आए। कुमा इज जस्ट लाइक वो तो सिर्फ एक प्रोनाउन अटैच्ड है ना, किसका रब, बट रब, उसी रब की बात हो रही है, ठीक है? हाँ, सही है, तो उसमें बदल नहीं है, तुम ये कह रही बदल हो नहीं हो सकता, है क्योंकि वो इसलिए उसका, कि वो हाँ, जैसे वो जो रब्बी कसरा और दमा का जो फर्क है, राइट? एग्जैक्टली, वो दोनों का फर्क है, ठीक है? अच्छा, अब आप फरहीन को सवाल पूछ रही थी। फरहीन, क्या क्वेश्चन था आपका? नहीं, मैं यही, मैं क्वेश्चन ही था, मैं समझी कि तुमने कहा कि रब्बी जो है वो बदल है, और रहमान का तो मैं ये कह रही थी कि वो रफा में है, ये जर में, ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो रब्बू की बात हो रही है, ठीक है? हाँ, रहमान और रब्बू की बात हो रही है, लेकिन इट इज इजियर टू जस्ट बी लाइक, जस्ट स्टे वेरी लाइट एंड से कि ये हुआ रब्बुल मशरिकैन, ही इज अ रब ऑफ द मशरिकैन एंड रब्बुल मगरिबैन, ठीक है? दैट इज इजियर टू से एंड दैट मेक्स सेंस, ठीक है? दोनों चीजें मेक सेंस कर रही हैं। अब नाउ द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू इज मशरिकैनी, इधर ही पॉज करें, इसके मुतालिक जरा मुझे बताएं, ये मशरिकैनी कौन से, ये कौन है? मशरिकैनी का सर्फ बताएं। मशरिक, शर्क, शीन रा कॉफ, शीन रा कॉफ, गुड जॉब। अच्छा, इसमें ये, अब उसमें इसका सीगा क्या है? ये फरीन बता रही है। ओके, नहीं, बोलो। अब मुझे ये जर्फ लगा। हाँ, ये जर्फ है, बिल्कुल। लोकेशन है, चार्ट पे जब चढ़ाओ इसको, उसका तो उस पे
मशरिकुन हाँ ऐसे होता है ना, बिल्कुल मशरकुन मशरिकुन मशरकतुन वाली चीज जो आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मशरकुन मशरिकुन मशरकतुन, क्योंकि मीम विद फतह वो लेता है, ठीक है। मीम विद फतह जो होता है आपका, वो आपका लेता है ज़र्फ में, और मीम विद कसरा होता है आपका जर में, राइट। ये हमें याद है। अच्छा मुझे ना एक मिनट अपना ना जरा व्हाइट बोर्ड ढूंढने में, मेरा व्हाइट बोर्ड किधर लिखा होता है, सुभान अल्लाह। ओके, एक जो आपने बात नोट करनी है कि वो सॉरी मैं ना जरा व्हाइट बोर्ड देखती हूँ कि मेरा व्हाइट बोर्ड कहाँ लिख गया। सुभान अल्लाह, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। राइट हैंड पे होता है ना? राइट हैंड में मैं देख रही हूँ। Optimize for video clip, height, floating height names, सुभान मीटिंग info, stop record. ऑप्शंस में देखो, रिमोट कंट्रोल का चीज़ है। चलो इसको तो नहीं छेड़ रही बेहतर है, बिल्कुल ही खराब कर दूंगी कुछ करके। ओके, लेट मी जस्ट टाइप इट wherever I can. So इंशाल्लाह साइड पे टाइप करते हो। एक आप लोगों ने एक बात नोट करनी है, अब हमने जो इम्पोर्टेंट सर्फ का पॉइंट है, इसमें सर्फ का पॉइंट जो मैंने नया सीखा है, तो आपको प्लीज मेरे से सीखना पड़ेगा। ये जो नहीं ये नहीं मैंने करना था। ओके, इसके ऊपर वर्ड के ऊपर आपने गौर करना है। मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो ज़र्फ के 3 चीजें होती है ना, ज़र्फ की 3 चीजें, ठीक है। ज़र्फ आपने 3 दफा पढ़े थे ना, मशरिकुन सॉरी मशरकुन मशरिकुन मशरकतुन, ठीक है। इन तीनों को अपने दिमाग में लेकर आना है आपने। मशरकुन मशरिकुन मशरकतुन, ठीक। ये आपको याद आ गए, ये तीनों थे। जो मैं स्टेटमेंट देने लगी हूँ वो सुननी है। whenever you have in mudare, whenever you have in, I'm talking on mudare, whenever you have dhamma and fatha in mudare, dhamma or fatha in mudare, your zarf is going to be mashrakun, ठीक है। दम्मा लिख लें आप, प्लीज लिख लें। दम्मा और फतहा इन मुदारे, आपने बात कर रहे हैं फतहा यफ्ताहु, उसका मस्तर होना चाहिए, उसका ज़र्फ होना चाहिए मफ्ताहुन, मफ्तीहुन नहीं होना चाहिए। दैट इज आउट ऑफ। दोबारा से बोलो, व्हेन यू हैव फतहा शुरू से बोलो। हाँ, ओके। सो in mudare if you have dhamma or fatha, meaning nasara yansuru, samiya yasma'u, फतहा यफ्ताहु, सो आप देख रहे हैं दम्मा और फतहा आ रहे हैं, then your zarf is going to be with a fatha, mashrakun, okay, so zarf is with a fatha. When you have kasra in mudare, then is the second, mashrikun is your then your zarf should be with a kasra, maftihun, तब होता है आपने कसरा तब पे करना होता है, बोला ज़र्फ होता है इसमें कसरा आता है तब जब आपके मुदारे में कसरा हो, अदरवाइज यू आर एक्सपेक्टिंग टू सी द फतहा। ओके, सो दोबारा, मुदारे विद दम्मा एंड फतहा, आपका ज़र्फ विद फतहा, मुदारे विद कसरा, योर ज़र्फ विद कसरा। ओके, आई एम होपिंग यू विल नॉट फॉरगेट इट। अब इसमें एक्सेप्शन देखनी है आपको। These two words, मशरिकुन एंड मगरिबुन, इज एन एक्सेप्शन। आप मुझे बताएं अमरीन, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं मशरिकुन को, मैंने इतनी बड़ी अभी आपको स्टेटमेंट दी है, एग्जैक्टली मैं उसी पे फंसी हुई हूँ कि क्योंकि उसके हिसाब से तो फिर मेरा ये शरा का यश, मैं तो यश रुकू शरकन पर चल रही थी ना। नहीं अभी आप इसके मुताबिक मशरिकुन, मैं आपसे पूछती हूँ कौन कौन सी फैमिलीज हो सकती हैं, तो आप कौन सी फैमिली कहती है मशरिकुन को, किस फैमिली में लेकर जाती? मोस्ट लाइकली नसरा दरबा समिया। नहीं, लेकिन अभी उसमें तो फतह, उसमें तो दम्मा है, उसमें तो दम्मा और फतह आते हैं, तो उसमें तो मशरकुन होना चाहिए ना। उल्टा कर गई आप। नहीं मैं सोच रही हूँ प्रोसेस कर ले तो कि तुम इसमें कह रही हो मशरिकैनी की फैमिली कौन सी हो? हाँ, मशरिकुन में
कौन सा बाब मशरिकुन जो लगता है, तो बाब कौन सा लगेगा? तो देन आपकी कॉन्सेप्ट जो आपने बताया है उसमें तो आपने कहा कि कसरा, इफ दैट इज द केस, यहाँ कसरा दिख रहा है तो दैट मीन्स कसरा आनी चाहिए थी ना? हाँ, कौन सी फैमिली होनी चाहिए थी? दराबा या दरीबू। एग्जैक्टली, बस इधर ही रुके, अब इधर ही रुके। ओके, ठीक है, ठीक है। सेम थिंग विद द मगरिबुन, यू आर एक्सपेक्टिंग टू सी दरबा यदरिबू, क्योंकि मैंने भी आपको कहा कि कसरा तो सब फिर आपके सेकंड नून लेटर पे कसरा आते हैं। अगर आपके मुदारे में कसरा तो इसमें कसरा, ठीक। सेम थिंग विद मस्जिद, मस्जिद में भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दरबा फैमिली का होगा, ठीक है। लेकिन ये 3 वर्ड्स और इसके साथ देयर आर द लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो कि टोटल 14 वर्ड्स एंड टोटल, they actually are the exception. They don't belong to daraba, but still their zarf looks like the daraba zarf. ठीक है, meaning sajada yasjudu, zarf is masjid, इसको होना चाहिए था मस्जिदुन, ठीक है, क्योंकि आपने दमा लिया हुआ है मुदारे में, तो आपने कैसे कसरा ले लिया जर्फ में, लेकिन दैट इज एक्सेप्शन। ये ये शरका यशरुकू, गरबा यगरबू यगरुबू, ये दूसरी, ये दरबा की नहीं है लेकिन फिर भी ये कसरा लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट आई नाउ इफ आई एम गिवन एनी जर्फ, मैं पिक कर सकती हूँ कि मैंने कौन सा वाला पैटर्न यूज करना है उस फैमिली बाप के साथ। मीनिंग मैं नसरा के साथ में अब हमेशा कहूंगी मफ्ताहुन, राइट, मैं मफ्तीहुन नहीं कहूंगी। मुझे कुछ समिया का मिलेगा तो यस्माऊ है तो मैं कहूंगी मफ्ताहुन, मैं अब उसमें कसरा नहीं लेकर आऊंगी। सो इट इज इजियर नाउ कि मैं कौन सा पिक करूं, ठीक है। दिस इज 504, सुभान अल्लाह, टाइम जस्ट रन सो फास्ट। ओके, सुभान अल्लाह, अगेन हमारी आय नंबर 18 हमने पहले कवर की है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी नो द इन्स एंड आउट ऑफ दिस आया, आई होप दैट वी नो इंशाल्लाह। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग मुझे ना थप्पड़ लगा देने के पीछे पीछे पड़ गई हमारे। ओके, ये वाली बात मैं आपको इसके ऊपर एंड करूंगी। सुभान अल्लाह, मुझे करना नहीं आ रहा कि मैंने कैसे करना था एनोटेट। ओके, ये वाला जो वर्ड है ना, ये वर्ड ऐसे लगता है जैसे कि ना, ठीक है, अफ़आलुन, अफ़आलुन, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है ना, ये अफ़आलुन है, बस मैं आपको इसी पे छोड़ूंगी। ये आपका प्लूरल है जिसका पैटर्न है अफ़आलुन, ठीक है। इसको बस इस तरह याद कर लें इंशाल्लाह। आई विल टेल यू व्हाट इज मेंट बाय, मैंने क्यों ये की है अफ़आलुन। आई नंबर 19 में मैं आपको कवर कराने लगी हूँ क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मराजा, क्योंकि आई वांट टू गो अहेड विद आयस। मराजा आपके पास था, आपके पास इसम सॉरी फेल है, और उसमें अल बहरैनी, मरज अल बहरैनी मफूल भी आपके जो बहरैनी है, मीनिंग दो बहर, टू बॉडीज, और यल तकियान, और ये जो दो बॉडीज हैं दे आर यल तकियान मर्जिंग विद वन अनदर। नाउ आई एम सीइंग मरज अल बहरैनी यल्तकियान, so I think I should stop here. Exactly, very good job. मैंने ये आपको कहने लगी थी कि जब आपके पास दो फेल आए, दोनों के दरमियान में कोई राबता ना, मीनिंग के हर्फ अतफ ना लगाओ, ना सुम्मा ना फा ना वाओ, दो फेल, पहले वाला कोई भी फेल, दूसरे वाला मुदारे मीनिंग ये वाला सुभान अल्लाह, मैं तो लगता है कि ना शैतान मेरे साथ बड़ा बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे जब भी मैं कोई काम करती हूँ मुझे मेरे साथ कुछ होता नहीं उसमें। ओके, ये वाला फेल मादी, ये वाला फेल मुदारे, दिस कैन बी द हाल, ठीक है। ये हाल हो सकता है, ये हाल है बहरैनी का, ये साहिबुल हाल इस बहरैनी, ठीक है। साहिबुल हाल जो है वो बहरैनी की बात होने लगी, ठीक है। और बहरे हमें याद, अब हमने इसका मतलब ये कि हमने हाल का टॉपिक रिवाइज करना है कल के लिए। इस बात करने का मतलब ये था कि हमने टॉपिक रिवाइज करना है, क्योंकि मुझे ये याद है कि साहिबुल हाल इज ऑलवेज प्रॉपर, मुझे ये बात याद है उसमें, राइट, हमें याद है ना ये बात, साहिबुल हाल इज प्रॉपर। और आप देखें कि उसकी जो भी चीज है अल बहरैनी की,
फेल की Match शक्ल हो उससे रहे हैं। मिल रही है। और वो मैच होमा और होमा 2-2 का मैचिंग भी हो रही है ना। बिल्कुल, हाँ, आपको ये याद इसमें हाँ, वेरी गुड जॉब। ठीक है, so let's end here inshallah. We will keep opening this beautiful surah and we'll keep try to learn as much as we can. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us. Inshallah, I'm going to end here. Inshallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't forget, आपने ज़ाता का और ज़ू का टेबल याद करना है, आपने हाल पढ़ना है, आपने मस्तर वाली जो मैंने मस्तनी ज़र्फ वाली जो बात बताई है, आपने इसको नहीं भूलना। आपको मैंने आला का आलाई का स्ट्रक्चर बताया है, अफ़आल, आपने ये नहीं भूलना। ठीक है, आपने ये नहीं भूलना, ये अफ़आल के ऊपर है, क्योंकि मेरा जो गोल, मैंने अपने लर्निंग जो थी, मेरी वर्ड स्ट्रक्चर की लर्निंग थी मैंने करनी। तो इंशाल्लाह वी विल बी पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन टू मस्तर कैसा लगता है, ज़र्फ कैसा होता है, आला कैसा होता है, ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह विल बी लर्निंग मोर एंड मोर। फा की वन टाइप फसीहा नहीं भूलनी। लुक आउट फॉर द नोट्स जो कि आपके साथ टाइप ऑफ फा पे शेयर होंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपने इस क्लास में से 5% भी गेन कर ली है आज, बी वेरी हैप्पी, क्योंकि दिस इज हैवी मटेरियल, बहुत ज्यादा मटेरियल एकदम से आप पे थ्रो किया जा रहा है। सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टे वेरी पॉजिटिव, वेरी काम एंड टेलिंग आवरसेल्व्स वी कैन डू इट। Don't tell yourself you can do it. Tell yourself you can do it, inshallah. And I will see you tomorrow at 4, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम।